अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए मिसाली इलाका और दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुंच गया। मादापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर के एटीआर का खिताब। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेले किए जा रहे हैं मुनक्कद। पालाकुर्ती में मेगा जॉब मेले की इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल के 6 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को कर लिया गिरफ्तार। नायब सदर धनखड़ ने धान की फसल की कटाई से मुतालिक त्योहार पर दी मुबारकबाद। मुल्क के किसानों से नेक तमन्नाओं का किया इजहार। रिजर्व बिल से खवातीन का विखार बढ़ेगा और नए मौके भी मिलेंगे। लोकसभा में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल का बयान। चांद के कुतुब जुनूबी पर हिंदुस्तान की सॉफ्ट लैंडिंग तारीखी लम्हा। राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल का खिताब। खवातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए। लोकसभा में सोनिया गांधी का मुतालबा। और खातून रिजर्वेशन बिल रिजर्वेशन नहीं बल्कि लालच देने वाला बिल। बीएसपी सरबराह मायावती का बीजेपी पर तंज। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नाज़्म व नस्ग के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद सरमायाकारी के लिए एक मिसाली इलाका है। रियासती वजीर के एटीआर ने 4 शंबे को हैदराबाद के मादापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि शहर हैदराबाद दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में 40% से ज्यादा दवाएं यहां से आती हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इन कंपनियों के साथ खड़े होंगे जो सरमायाकारी के साथ आगे आएंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लाइफ साइंसेज का मरकज बनेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पास हो। That's my job, finding out, where his checkbook is and making sure that I get another check drawn out. So he said, my board is sitting right in front of me. So he said, I can't say it openly. And he basically whispered in my ear, saying that he's invested about $1.5 billion USD. It was a big round of applause. And what's even more heartening, he told me that another 40% of that, about 600 million, would also is in the next future. So it's just a testimony to what this city has in terms of a promising future. Yesterday, in fact, we had a group of 250 builders and construction companies from Maharashtra who we hosted here in Hyderabad. And one of the things that one of the leading builders from Maharashtra told me was, they went around Hyderabad for 3 days, and then he comes to me and he says, so what is happening in Hyderabad essentially is, what is being built here essentially is India's own version of Singapore. And I was so delighted because Singapore is a country that I look up to. Singapore is certainly a country that we all look up to. Singapore, Japan, these are the nations that have done tremendously well in our own, continent, Asia. And these are the countries we have so much to learn from. I have to confess, Mano, that while we were formulating our industrial policy in Telangana, we have looked at EDB, we have studied all the things that you guys have done in Singapore and have copied many aspects of it. We did not pay you for that, sorry about that, but we copied. Life is all about learning good things, picking up, imbibing the best elements of, and you also know that wise people learn from others' experience. You don't have to reinvent the wheel, you don't have to start from scratch. So, have picked up quite a few things, and
As Gauri said, I think Capital Land has been invested in Hyderabad for a very long time, and I also believe that they will continue to remain vested for the long term. The data center is coming up rather well, is what I was told. Buildings are looking swanky, and I'm sure you're going to add many more buildings to the skyline here. We also discussed a couple of other opportunities. Mano was surprised when I told him that we are the life sciences capital of not just India, but we are by far the most important life sciences hub, one of the most important life sciences hubs in the world. वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने कहा है कि हम जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद कर रहे हैं। पाला कुर्ती के एक फंक्शन हॉल में DRDA जनगांव और एरावली चैरिटेबल ट्रस्ट के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़िदा जॉब मेले में जुमला 80 कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर दयाकर राव ने कहा कि जॉब मेलों के इनेकाद की वजह से नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने बताया कि इस मेगा जॉब मेले में मल्टीनेशनल कंपनियों समेत मजमूई तौर पर 80 मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा लिया और 14,205 अफराद को मुलाजिमत के मौके फराहम किए गए और हजारों की तादाद में मुलाजिमत के मुतलाशी इन मुलाजिमतों के लिए आए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि वज़ीर आला KCR वज़ीर IT के तारक रामाराव की कोशिशों से रियासत में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR पहले ही कह चुके हैं कि रियासत में 35,000 मुलाजिमतों पर के वजीर KTR ने कहा है कि बेरोजगार सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं। तेलंगाना के नौजवानों की सलाहियतों को निखारना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के बेशुमार मौके मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में जिले कलेक्टर शिवलिंगैया, एरावली चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरमैन एरावली और औषादयाकर राव, मुकामी अवामी नुमाइंदे और दीगर ने शिरकत की। शहरी हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल से अगवा किए गए 6 माह के बच्चे का पुलिस ने पता चला लिया है। टास्क फोर्स पुलिस ने जिले निजामाबाद में मगविया बच्चे का पता चलाते हुए कमसिन को अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इस जोड़े ने पूछगुछ में बताया है कि चूंकि वो लावलिद थे इसलिए उसका बच्चे उन्होंने अगवा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक सलमान खान और फरीदा बेगम गंडीपेट के एक फार्म हाउस में चौकीदार के तौर पर काम करती हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को खराबी सेहत की बिना पर 14 सितंबर की दोपहर नीलोफर अस्पताल लाया गया था। इसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। वालिदा फरीदा बेगम अपने छोटे बेटे फजल खान को पकड़े पहली मंजिल पर बैठी हुई थी क्योंकि बड़े बेटे का इलाज जारी था। इसी दौरान फरीदा बेगम के पास एक खातून आ गई जो उससे बातें करने लगी। इसी दौरान फरीदा बेगम खाना लेने वार्ड से बाहर चली गई। उसने जब मुड़कर देखा तो छोटा लड़का उसे नजर नहीं आया। फरीदा बेगम ने परेशान होकर करीब में मौजूद अफराद से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जो खातून इसके करीब बैठी हुई थी वही उसके बच्चे को ले गई। फरीदा ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामला दर्ज कर लिया। जिस वार्ड में लड़के का पता था वहां CCTV कैमरा ना होने की वजह से पुलिस को जांच में रुकावट पेश आई। ताहम टास्क फोर्स पुलिस जिसने इस मामले की जांच की मगविया लड़के का निजामाबाद में पता चलाते हुए उसका अगवा करने वाले जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने चारशंबे की सुबह एक और तेंदुए को पकड़ा। इस तरह ओहदेदारों की जानिब से पकड़े गए तेंदुओं की तादाद 6 हो गई। ओहदेदारों ने कहा कि इस तेंदुए को नरसिम्हा स्वामी मंदिर के करीब उस मुकाम से पकड़ा गया जहां पर एक तेंदुए ने गुज़िश्ता माह कम उम्र लड़के पर हमला कर दिया था जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई थी। इस तेंदुए को जू पार्क मुंतकिल किया जा रहा है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मंदिर को जाने के पहाड़ी इलाके में कई तेंदुओं के नजर आने के बाद गुज़िश्ता माह ऑपरेशन तेंदुए की शुरुआत की थी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने तकरीबन 300 कैमरे लगाए हैं ताकि जंगली जानवरों की नकल व हरकत का पता चलाया जा सके। पीर को महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने एक तेंदुए को रिजर्व फॉरेस्ट में छोड़ा था जबकि एक और तेंदुए को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 7 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब जिले के मेटपल्ली जंगलाती इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया जिसके नतीजे में कार दूसरी कार के तसादुम हो गई।
महलूक की शिनाख्त वी नरसैया के तौर पर की गई है, जो सिंगारेनी कॉलेरीज कंपनी का मौजिफ मुलाजिम है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। हैदराबाद के मलकपेट चादरघाट विक्ट्री प्ले ग्राउंड के करीब गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया। जराये के मुताबिक कल शब अचानक ये आग लगी। ये वाकये में गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान के बशमूल दिल्ली से मुख्तलिफ किस्म का सामान लाकर रखा जाता है। उनमें घरेलू इस्तेमाल की अशिया, फर्नीचर्स, पाइप भी शामिल हैं। इस वाकये में तमाम सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। ये गोदाम 3 ट्रांसपोर्ट का था। चलती स्कूल बस में दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की मौत हो गई। इस वाकये में बस के सड़क पर रुक जाने के नतीजे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के उपलापाडू मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 53 साल बस ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त एडोला गंडला के तौर पर की गई है, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को जिले के मेलावरम, उपलापाडू और वेम्पारा मवाजिया से ताल्लुक रखने वाले स्कूल ले जा रहा था कि उपलापाडू इलाके से गुजरने के दौरान अचानक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो ड्राइविंग सीट से गिर पड़ा और बस सड़क के दरमियान में रुक गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर ड्राइवर को नीचे उतारा, ताहम तब तक इसकी मौत हो गई थी। इत्तला मिलते ही ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने बच्चों को दूसरी बस के जरिए स्कूल ले जाने का इंतजाम किया। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने नुआओ खाई पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। नायब सदर के सेक्रेटेरिएट में चारशंबे को जारी एक पैगाम में कहा कि धनखड़ ने धान की फसल की कटाई से मुताल्लिक त्योहार नुआओ खाई के मौके पर किसानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान इस त्योहार को धान की कटाई की याद में मनाते हैं और ये त्योहार हमें बाहमी भाईचारे, मोहब्बत और समाजी हम आहंगी का पैगाम देता है। धनखड़ ने कहा, नुआओ खाई के मुकद्दस त्योहार पर तमाम हमवतनों को दिली नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद। इस पुरमसरत मौके पर मैं ईश्वर से मुल्क के तमाम किसान भाइयों की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में नारी शक्ति विंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि इसकी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके इसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। आइन की 128वीं तरमीमी बिल 2023 पर बहस के आगाज पर सोनिया गांधी ने अपने शौहर और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि यह उनकी जिंदगी का एक इंतहाई अहम ख्वाब था। जब तक इसे नाफिज नहीं किया जाएगा, उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार बल्दियाती इदारों में खवातीन की शिरकत की इजाजत देने वाली आईनी तरमीमी बिल उनकी जिंदगी के हमसफर राजीव गांधी लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से नाकाम हो गए थे। बाद में इसे वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत ने मंजूर किया। आज इसका नतीजा यह है कि हमारे पास मुल्क भर में बल्दियाती इदारों के जरिए 15 लाख खवातीन लीडर मुंतखब हुई हैं। राजीव गांधी का अब तक सिर्फ आधा ख्वाब पूरा हुआ है, जो इस बिल की मंजूरी से पूरा हो जाएगा। मोहतरमा गांधी ने कहा कि अपने बच्चों की पैदाइश, परवरिश और धुआंधार किचन और खानदान को बड़ी जिम्मेदारी से चलाने के साथ साथ मर्दों के दरमियान खवातीन की जद्दोजहद का सफर बहुत तवील रहा है। उन्हें कई बार शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इस बिल के आने के साथ आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं, खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं
पार्लियामेंट की नई इमारत में लोकसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक बिल की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये एक अहम आईनी बिल है जो अमृत कौल में तारीखी कदम बढ़ाने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने से जहां खवातीन का विखार बढ़ेगा वहीं उनके लिए नए मौके भी पैदा होंगे। मेघवाल ने कहा कि इस तरमीमी बिल में कुछ नई शक़ें भी शामिल की गई हैं जिससे लोकसभा, राज्यसभा और रियासती असेंबलियों में अब खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिए जाने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि बिल पास होने पर रिजर्वेशन का ये निजाम 15 बरस के लिए नाफिजुल अमल रहेगा। इसके बाद फिर पार्लियामेंट तय करेगी कि रिजर्वेशन को बदस्तूर जारी रखना है या इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने चारशंबे को कहा कि चांद के जुनूबी कुतुब पर हिंदुस्तानी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दुनिया की तारीख का एक तारीखी लम्हा है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। गोयल ने राज्यसभा में हिंदुस्तान का शानदार खलाई सफर चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की चांद के जुनूबी कुतुब पर सॉफ्ट लैंडिंग ने न सिर्फ मुल्क के हर फर्द को फख्र महसूस करा रहा है बल्कि इससे G20 के दौरान आने वाले गैर मुल्की भी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी साबित करती है कि हिंदुस्तान बड़े चैलेंजों का सामना करने और इससे निपटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई और एतमाद से हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे के साइंसदानों ने यह कारनामा अंजाम दिया है। इस कामयाबी में हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया मुहिम ने अहम किरदार अदा किया है। चंद्रयान 3 मिशन में हिंदुस्तानी कंपनियों के तैयार करदा पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं। खातून रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में हुक्मरान जमात बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने कहा कि ये बिल खवातीन को रिजर्वेशन देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आइंदा इंतखाबात से पहले खवातीन को लालच देने के लिए लाया गया है। मायावती ने चारशंबे को कहा कि खातून रिजर्वेशन बिल की हिमायत में उनकी पार्टी अव्वल दिन से है और खवातीन को नुमाइंदगी देने वाले इस बिल को फौरी असर से नाफिज करने की वकालत करती है, लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि बिल को पास होने के बाद उसे फौरन नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में मुल्क में खवातीन को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे फौरन नाफिज नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले मुल्क में मर्दमशुमारी कराई जाएगी और इसके बाद सीटों की हदबंदी की जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि मर्दमशुमारी में काफी वक्त लगता है, इसके बाद ही ये बिल नाफिज होगा। इससे साफ है कि यह बिल खवातीन को रिजर्वेशन देने के इरादे से नहीं लाया गया है बल्कि आइंदा इंतखाबात से पहले खवातीन को लालच देने के लिए लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों पर जमहूरियत का गला घोंटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन को हुकूक देकर बाइख्तियार बनाने की अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया है। आईन 128वीं तरमीम बिल 2023 पर बहस का आगाज कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने किया, जिसके बाद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने अपना रुख पेश किया। इससे पहले कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दस्तूर हिंद के तमहीद में समाजी और इक्तिसादी इंसाफ का तज़किरा है, मौक़े की मसावत का भी जिक्र है। आज का बिल न सिर्फ खवातीन के विखार में इजाफा करेगा बल्कि मौक़े की मसावत में भी इजाफा करेगा। खवातीन को नुमाइंदगी मिलेगी। दुबे ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादी आज तक ये बिल नहीं लाए हैं। हमारे वजीर आजम, हमारी पार्टी ने ये अखलाकी जुर्रत दिखाई, ये बिल लेकर आए। ये मुल्क आइन से चलता है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत इख्तिदार में नहीं आई, सर्वशिक्षा अभियान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा। जब लड़कियां स्कूल जाती तो उन्हें खाना पका कर जाना पड़ता था। इसके बाद मिड डे मील स्कीम आई। ये सही वक्त है, यही वक्त है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया हम इसका एहतराम करते हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने अनूपपुर जिले के बताए जा रहे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो के ताल्लुक से हुकूमत पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कबायलियों को अजियत देने में सरे फहरिस्त पार्टी होती जा रही है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस वीडियो को देखने के बाद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनूपपुर जिले में एक कबायली शख्स की लाश के पास एक बीजेपी लीडर दूसरे कबायली आदमी को चप्पल से पीटते हुए नजर आ रहा। रियासत में
ही बीजेपी कबायली मजालिम की पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने रियासत के कई पुराने वाकयात का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि हर बार कबायलियों पर जुल्म करने वाला या तो बीजेपी का लीडर होता है या इससे जुड़ा कोई शख्स। सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स लाश के पास बैठे एक बुजुर्ग को पीटता नजर आ रहा है। इल्जाम है कि मरने वाला बीजेपी से वाबस्ता है। बताया जा रहा है कि दो बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि इस दौरान नामालूम गाड़ी की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स की मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर डकैती के मामले में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जराये ने बताया है कि कल एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े होने वाली डकैती में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। उन मुल्जिमान को छत्तीसगढ़ झारखंड सरहद पर चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। डकैती की वारदात के बाद तमाम मुल्जिमान रकम और जेवरात लेकर ट्रक में सवार होकर झारखंड फरार हो रहे थे। रायगढ़ पुलिस बलरामपुर में पकड़े गए तमाम मुल्जिमीन को लेकर आएगी। इसके बाद डकैती का मामला सामने आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर राजौरी और कोकरनाग जैसे हमले होते रहे तो ऐसे माहौल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत के लिए माहौल तैयार करे। उनका कहना था कि हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का बुध के रोज जम्मू में नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा और वो सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी है। उनका कहना था जब तक राजौरी कोकरनाग और श्रीनगर जैसे हमले होते रहेंगे तब तक बातचीत के लिए माहौल तैयार नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करने की ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है लेकिन वो इसके लिए इकदाम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। का काम हुआ तो क्या कह के किया कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। कहा या नहीं कहा? कहा। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। हमने 370 हटाया इस सोच को हटाने के लिए और आज हम दावे से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा है। ठीक है, आपने कहा हम कौन होते हैं एतराज करने वाले, लेकिन उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यूपी में तकरीर करते हैं और तकरीर में कहते हैं कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में हूं जब तक कि मैं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ता नहीं हूं। अब मुझे बताइए ना, झूठ किसने बोला? फौज के मुताबिक जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के गडोल कोकरनाग के घने जंगल इलाके में 7 दिनों तक जारी रहने वाला मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चारशंबे के रोज इख्तिताम पजीर हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान एक फौजी कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और लश्कर तैयबा के एक कमांडर समेत कम से कम 6 अफराद जाँ बहक हो गए। ऑपरेशन के लिए पहले रोज यानी 13 सितंबर को ही जंगजुओं की अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में फौजी कर्नल मिनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनक और डीएसपी हुमायूं भट्ट जाँ बहक हुए थे।
श्रीनगर नेशन फौज के चिनार कोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, दहशतगर्दों की मौजूदगी के मुतालिक इत्तला मौसूल होने पर फौज और जम्मू और कश्मीर पुलिस की एक टीम ने अनंतनाग के गडोल इलाके में 13 सितंबर से 19 सितंबर तक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया। उन्होंने कहा, तरफैन के दरमियान 13 सितंबर को पहला राब्ता हुआ, जिसके नतीजे में तसादुम आराई शुरू हुई और ऑपरेशन भी तवील हुआ, जो 19 सितंबर तक जारी रहा। फौज ने पोस्ट में कहा, इस ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया, जिनकी तहवील से 2 AK-47 राइफल, एक पिस्तौल और दूसरा जंगी सामान बरामद कर लिया गया है। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए मिसाली इलाका और दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुंच गया। मादापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेले किए जा रहे हैं मुनक्कद। पालाकुर्ती में मेगा जॉब मेले की इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से 6 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने कमसीन को अगवा करने वाले जोड़े को कर लिया गिरफ्तार। नायब सदर धनखड़ ने धान की फसल की कटाई से मुतालिक त्योहार पर दी मुबारकबाद। मुल्क के किसानों से नेक तमन्नाओं का किया इजहार। रिजर्व बिल से खवातीन का विखार बढ़ेगा और नए मौके भी मिलेंगे। लोकसभा में मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल का बयान। चांद के कुतुब जुनूबी पर हिंदुस्तान की सॉफ्ट लैंडिंग तारीखी लम्हा। राज्यसभा में कायद ऐवान पीयूष गोयल का खिताब। खवातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए। लोकसभा में सोनिया गांधी का मुतालबा। और खातून रिजर्वेशन नहीं बल्कि लालच देने वाला बिल। BSP सरबराह मायावती का BJP पर तंज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।